Students, today we will learn electromagnetic force. The term electromagnetic made up of two words, electro plus magnetic. Electromagnetic force is the force between charged particles, positive and negative, because we have two charges, positive and negative. So it can be attractive or repulsive. Attractive for opposite kind of charges, suppose one charge is plus and another is minus, and repulsive for both the charges are of same types, either both are positive or both are negative. Electromagnetic means electro plus magnetic. Electro means charge and magnetic means charge in motion. So if we combine the charges, both the term charges with motion, then their combined effect will be electromagnetic force. Suppose charge is moving or charge is moving with a acceleration, then there will be a electromagnetic force will be generated. Okay, or electromagnetic waves will be generated. No medium is required for electromagnetic force. No medium is required. First one is no medium is required, one important thing. Second one, it is 10 to the power 38 times stronger than gravitational force. Okay, uh, it acts between it acts within molecular or atomic structure within the radius of atom. Matter is made up of molecule. Molecule consists of many atoms inside, and each atom consists of nucleus inside it. Inside nucleus there are neutrons and protons. Suppose you have a pen or you have any object, so break it into many parts, into very small parts. Okay, suppose you have a piece of wood, break it into small particles. आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, फिर जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वुड है, ये क्या है, दैट इज़ मैटर. ये क्या बोलेंगे इसको, दैट इज़ मैटर. ये क्या हो गया, मैटर हो गया. अब मैटर को जब आप स्मॉलेस्ट पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हो, तो ये क्या हो गए, इसको बोलेंगे एटम्स. ठीक है, सॉरी, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल्स. इस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, and within atom there is a nucleus, and within atom there is nucleus, and within nucleus there are electron and proton. Okay, so first thing is matter. At first सबसे पहले क्या है, मैटर है. मैटर के बाद मॉलिक्यूल है. ठीक है, मॉलिक्यूल के बाद क्या है, एटम है. सबसे पहले आपका हो गया मैटर, मैटर से हो गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से हो गया एटम, एटम से हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से हो गया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ये सब आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी. ठीक है, तो विद इन न्यूक्लियस क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. Electromagnetic force operate between electron and proton. For proton repulsive electromagnetic force, proton and electron attractive electromagnetic force. Because proton and proton both have positive charges, so there is a
repulsive electromagnetic force, and proton and electron both have opposite charges, so there is a attractive electromagnetic force. Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें एक पर्सन है रॉनी, ठीक है। रॉनी ने क्या किया हुआ है, अपने हैंड्स में उसने एक बॉल को ऐसे रख करके बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टली उसने बैलेंस किया। देखिए, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट करेगा, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि बॉल को अगर आप छोड़ दीजिए तो बॉल कहाँ जाएगी, सीधे अर्थ पे जाएगी, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस कैसे कर रहे हो, आप इसको बैलेंस कर रहे हो, एक अपवर्ड आपने एक फोर्स लगाया है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ रहा है, सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग, EM force due to charges at surface of contact, क्योंकि वो अपने हाथों में क्या कर रहा है, उसको वो पकड़े हुए है, बॉल को पकड़े हुए है, ठीक है। तो हाथ उसके क्या कर रहे हैं, बॉल से कांटेक्ट कर रहे हैं, बॉल से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो EM फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक। और जो जो अर्थ है, अर्थ क्या कर रही है, अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन आप ये देखिए कि जो रॉनी क्या है, रॉनी अपने दोनों हाथों से बॉल को क्या करे, हॉरिजॉन्टली जो है वो बैलेंस कंडीशन में रखे हुए। तो इसका ये मतलब है कि जो बैलेंस कर रहा है वो फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, तभी तो वो बैलेंस है, ठीक। अदरवाइज वो बॉल क्या होती, वो बॉल जो है वो नीचे आ जाती, ठीक। तो इसका ये मतलब है जो EM फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो EM फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। EM फोर्स बेसिकली क्या है कि जब आप टच कर रहे हो किसी चीज़ को तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्चुअली बेसिकली चार्जेस हैं। बात समझिए, आपके जो हाथ हैं, जो हैंड्स हैं, उनको अगर आप रब करते हो किसी चीज़ में तो वहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है वो EM फोर्स जो है वहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। जैसे आपने इसका एग्जांपल है, जैसे बैलून को आप अगर हल्का सा रब करके अगर आप दीवार पे उसको स्टिक कर दो तो वो सीधे जाके दीवार पे चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, ड्यू टू EM फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप बॉल को आप पकड़ते हो तो बॉल क्या होती है, बॉल रब होती है, ठीक। बॉल आपके हैंड से रब हो रही है तो इसकी वजह से उसमें चार्ज आ रहा है, ठीक। तो ये EM फोर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो EM फोर्स है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और जो EM फोर्स है उसको आप अपवर्ड उसको ले जा रहे हो, ठीक है। तो EM फोर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे ये बॉल है, आपने इसको अपने हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये लग रहा है EM फोर्स, और इसको जो नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे पुल कर रहा है, ठीक है। तो EM फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि बॉल जो है वो ज़मीन पे नहीं गिर रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑपरेटिंग विद इन न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मीन्स विद इन द न्यूक्लियस, फोर्स ऑपरेटिंग विद इन न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, चेंज इन चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ठीक है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है ये, न्यूट्रॉन्स डजंट हैव चार्ज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, जैसे न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं फिर भी फोर्स लग रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। वाई डिड न्यूक्लियर फोर्स इवॉल्व, थिंक। देखिए, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और बाहर क्या है, बाहर सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाहर सब के सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि वो प्लस और माइनस के बीच में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्शन का होगा। तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटसाइड ऑर्बिट
में मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो प्रोटॉन भी न्यूक्लियस से निकल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे तो जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें यही होता है कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और दैट द फोर्स इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ देयर इज नो फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल attract each other and atomic structure would collapse. ठीक है, because there would no force which hold the proton close to the neutron inside the nucleus. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। So we wanted a force between neutron and proton would be attractive, and this force should be stronger than electromagnetic force. So FNP का means force between neutron and proton is attractive and is stronger than electromagnetic force. ठीक है, तो FG मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन स्ट्रॉन्गर दैन EM उसको सेटिस्फाइड ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं कर रहा है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपका वीक फोर्स होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि EM फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सो साइंटिस्ट concluded that there exists another force, that is a strong nuclear force which act between proton and neutron. ठीक है, तो मतलब उन्होंने साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि वो जो फोर्स होगा वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा। इट इज़ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल कीप द स्ट्रक्चर स्टेबल। यही फोर्स जो है ये क्या कर रहा है, ये इसको न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, वाई कांट द अट्रैक्टिव फोर्स विद इन द न्यूक्लियस बी ग्रेविटेशनल फोर्स? इसका रीज़न गिवन है, FG अट्रैक्टिव बट वीकर दैन EM, सो नॉट सर्व द पर्पस। ठीक है, FG जो है वो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, अट्रैक्टिव तो है लेकिन ये वीकर दैन EM है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, सो ये अपने पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक, सो दिस फोर्स कुड नॉट बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकता। ये कौन सा फोर्स होना चाहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए। ठीक है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर लेते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑपरेट्स विद इन द न्यूक्लियस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके फॉर हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आपका फोर्स वाला पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो गया है।